Hello everyone. In previous classes we have discussed the basic modes of nutrition that were autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. Now in chapter 1 we have discussed mainly the autotrophic modes of nutrition, and in chapter 2, that is nutrition in animal, we were discussed heterotrophic modes of nutrition. Now heterotrophic modes of nutrition were further divided into three types, that is saprophytic, parasitic and holozoic modes of nutrition. In holozoic, in which between these three modes of nutrition, that is parasitic, saprophytic and holozoic, we were mainly concerned with the holozoic modes of nutrition, in which I have told you that holozoic modes of nutrition is that modes of nutrition in in which all the animals take their foods in solid form. Okay, now we were now this holozoic modes of nutrition can also be further divided into three types, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Now we are going to discuss three types of animals or creatures found on earth, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivores are those creatures or animals who depend on uh, plant for their food, that is they do not depend on other animal for their food, such as cow, rabbit, and cow, rabbit, buffalo, horse. Okay, and carnivorous are those animals who depend on other animals for their food. For example, lion, tiger, and omnivorous are those animals who depend on both plant and animal for their food. That is, they are both grass eating and flesh eating animals. For example, human being, cat, dog, etc. As we know, all the holozoic animals or some plants take their food in solid form. For their digestion, some steps are involved. That is that I am going to discuss further. So, dear students, now we are going to discuss the steps involved in holozoic modes of nutrition. The first step is ingestion of food. That is, what is ingestion of food? जैसे ही हम लोग जो भी कम्प्लेक्स फूड को कम्प्लेक्स फॉर्म में अपने मुंह में डालते हैं, तो उस चीज़ या फिर इनटेक ऑफ फूड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन ऑफ फूड कहते हैं. दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड इन कम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड इंजेक्शन. So intake of food in complex form is called ingestion. Okay, the second step is digestion of this food. What is the meaning of digestion of this food? Conversion of this complex food into simpler form by some enzymes present in the stomach of the living organism is called digestion of food. Okay, as we know, various enzymes are present in the stomach. For example, hydrochloric acid, HCl, and various juices present in the body help in the breaking of the food in complex form into simpler form. Okay, so this process is called digestion, and this process starts right from the mouth. That is, हम लोग खाने को मुंह में खाते हैं, तो जो भी बकल के दांत जो है उसको सिंपलर फॉर्म में, जो हमारे टीथ है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं. ओके, और जो हमारे माउथ में और जो टंग है उस फूड में सलाइवा मिक्स करता है, जो उस फूड को सॉफ्ट बना देता है. एट द सेम टाइम वह उसको थोड़ा बहुत उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो फूड थोड़ा बहुत फूड का ब्रेक डाउन भी हो जाता है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द बकल कैविटी, दैट इज आवर माउथ. बच्चों, ये क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन. द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ये जो हमने सिंपल फॉर्म में तोड़ा है, तो उस फूड से जो भी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो हमको मिलते हैं, तो उसको बॉडी के डिफरेंट उसको क्या करना, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेना. उस फूड से उसको ऑब्जॉर्ब कर लेना ही क्या कहलाता है? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. दैट इज पैसेज ऑफ सिंपलर फूड इनटू ब्लड इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. जो ब्लड में जो भी सिंपलर फूड है उसका उसमें पास हो जाना, उसमें मिक्स हो जाना, या उस लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड,
ठीक है, उसमें मिक्स हो जाना ही क्या होता है, ये हमारा ऑब्जॉर्प्शन कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप विल बी एसिमिलेशन ऑफ फूड। ओके, एसिमिलेशन ऑफ फूड यानी कि जो भी इस फूड का ऑब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसको यूटिलाइज करेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ के में, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। यानी कि जो भी फूड हमने यूटिलाइज, जो भी फूड से हमने जो भी एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ठीक है, जो हमने ऑब्जॉर्ब किया है, हमारे सेल्स जो ऑब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है, और उस ऑब्जॉर्ब एनर्जी को ब्लड के थ्रू जो वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुंचाए गए हैं, तो उसको वेरियस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, वॉकिंग, स्लीपिंग, ओके, या फिर डांसिंग, सिंगिंग, ये सब जो वेरियस ये जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इन एक्टिविटीज़ में जो ऑब्जॉर्ब एनर्जी का खर्च कर देना ही, यूटिलाइज कर देना ही एसिमिलेशन कहलाता है। That is, absorbed food being utilized for energy need for various activities। यानी कि वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, तो वो कहाँ से मिलेगी हमको, जो भी हमने फूड ऑब्जॉर्व किया है, ठीक है, उससे मिलेगी। तो उसी चीज़ को यूटिलाइज करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। अब ये फूड का यूज़ हो गया, अब हमको क्या करना है, जो भी फूड से टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस निकले रहते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया हमारा, अमोनिया हो गया, ओके, एज वेल एज सम सॉलिड वेस्ट एज वेल एज लिक्विड वेस्ट, तो इसको हमको क्या करना, इसको हमको, ये हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो इसको हमको बॉडी से बाहर करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि वह फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करती है, वो एसिमुलेट नहीं हो पाता है, तो उसको हमको बॉडी से क्या करना है, बाहर करना है। तो इस चीज़ को हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 हमारे स्टेप्स थे, जैसे इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमुलेशन ऑफ फूड और इजेशन ऑफ फूड, ये क्या है, ये टर्म्स है जो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे, जो भी हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन एनिमल, डाइजेशन इन काउ, तो ये सारे टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, आगे की क्लासेस के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।